Welcome back everyone for the next topic in class 12 accountancy, profit accounting for not for profit organization. In the last class we discussed about the receipt and payment account, income and expenditure account, and today we'll discuss about the balance sheet. How is the balance sheet made in the for these firms? Then the capital fund. I told you that in the place of capital there is capital fund, and this capital fund is generated when the members who participate, they pay the annual fee, subscriptions and others. Then this fund is generated, and the deficit or surplus from the income and expenditure account, they are added or subtracted from the in the capital fund. Then the next is building fund. Each and every organization or society or club or gymnasium, they have building, and in the building they have the building fund, and the building fund is used for maintenance of the building or making new building or repairs and others. Then in the building fund the contribution, they are kept for the, and the new contributions they are added. Then those organizations which are like clubs or sports or held sports activity, they maintain the sports fund. In the sports fund, the distribution of prizes and others, they are deducted, and the fee which is generated from the members, they are shown here or collected. Then the last topic is current liabilities. In the current liabilities, the outstanding and the others and debtors and other liabilities which are of current nature, means they have to be paid in the relating year, are kept here. These are the current liabilities. Now coming to the asset side. In asset side, the first topic is fixed asset. In the fixed assets, the items like building, furniture, land in possession, etc. are shown. Means these assets are can be used for a very long time, and they will benefit the firm in the long run. Therefore, they are the fixed assets. Then the current assets. In the current assets, they are current in nature, like investment. When the organization receives from the members and others, they have to be invested in proper way such that some returns comes. Then the investments are made in many types of funds, and these investments, they attract the benefits. Then the prepaid expenses, means some expenses which are prepaid, means already paid, they are noted here, and like insurance, rent, which are prepaid in nature, means for the next year it is paid in this year, they are all noted here. So these are the items which are to be listed in the current assets. Then all these figures, they are calculated, and both the sides should balance each other, means the sum of the liability side should tally with the sum of the asset side. In this way we can say that we maintain three books of account for not for profit organizations: receipt and payment account first of all, then income and expenditure account, and then the balance sheet. So these are the final accounts books to be maintained for the not for profit organization. Now we are coming to the next topic.
then we should take some precautions and measures before preparing the final accounts of not for profit organizations. And the first step is that preparation of preliminary balance sheet. The preliminary balance sheet is prepared in that circumstances when the capital fund is not given in the question. Then the preliminary balance sheet is prepared and the excess of assets over liabilities is the capital fund. तो कहने का मतलब है कि प्रीलिमिनरी बैलेंस शीट उस समय बनाया जाता है जब कैपिटल फंड क्वेश्चन में ना दिया गया हो और उस समय एसेट्स जितने लायबिलिटी से ज्यादा होते हैं वो कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर हमारा मिल जाता है. देन स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. तो कहने का मतलब है कि जितने भी मद दिए गए हैं उनको आइटम्स को रेवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में क्लासिफाई करना है. रिसिप्ट साइड में जितने भी आइटम्स हैं उसको रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट में वर्गीकृत कर लेना है. और नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या आता है? पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट. तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं? वे रिसिप्ट जो आयगत हो. आयगत मतलब क्या हुआ? किसी कैपिटल से वो संबंधित ना हो, उनको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं. जैसे फी हुआ, मेंबरशिप फी हुआ, और इसके अलावा और जो सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं वो हुआ, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं. अच्छा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट जो होते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं. मतलब उसको एडजस्ट किया जाता है, इनकम के साथ जोड़ के उसको एडजस्ट कर देते हैं. नंबर बी में आता है कैपिटल रिसिप्ट. तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जैसे संस्था में जो एसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हुए, बिल्डिंग हुआ, या कोई अनयूज्ड थिंग हुआ, उसको बेचते हैं. बेचने पे हमको प्रॉफिट होता है, मतलब बुक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे वो बिक रहा है, तो कैपिटल रिसिप्ट ये सब कहलाएंगे. और कैपिटल रिसिप्ट जो है उसमें एंडोमेंट फंड है, लाइफ मेंबरशिप फी है, ये सब भी कैपिटल रिसिप्ट है. जैसे लाइफ मेंबरशिप फी क्या है कि आजीवन काल के लिए वो सदस्य बन गया हमारी संस्था में, तो वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि उसको आजीवन का हमारे पास जमा किया है. तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे यहां पर ध्यान दीजिए. कि जो प्रॉफिट हमको हो रहा है एसेट्स बेचने पे, उसको हम बैलेंस शीट में ले जाके पर्टिकुलर एसेट में जोड़ देंगे. अच्छा, और प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो डेबिट या क्रेडिट होता है पीएल अकाउंट में. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कार था पुराना, बुक वैल्यू उसका 50,000 है और उसको 60,000 में बेच दिए, तो पीएल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर है 10,000 रुपया वो क्रेडिट हो जाएगा और यही फिगर हमारे एसेट्स में जाके जुड़ जाएगा. नेक्स्ट इज द स्टेप 3, identification of payments as revenue payment and capital payment. अब आते हैं पेमेंट की तरफ. जो भी पेमेंट के आइटम दिए गए हैं उनको रेवेन्यू
नेचर और कैपिटल नेचर दो अलग अलग तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी रेवेन्यू नेचर के पेमेंट्स हैं उनको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जा सकते हैं, और कैपिटल नेचर के जो पेमेंट्स हैं उसको हमको बैलेंस शीट में ले जाना है। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑन एसेट। यदि हम एसेट्स खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उसमें ऐड हो जाएगा, बेचेंगे तो घट जाएगा। तो हमको ये देखना है कि पेमेंट जो है जो किस तरह का है, किस नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, उसको उसी तरह ट्रीटमेंट करना है, उसी तरह उसको डिस्पोज करना है। यदि एक्सपेंस जो है किसी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है, उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है, तो वो लायबिलिटी साइड में उस फंड से घटा के दिखाया जाएगा। तो इस तरह से हम उसको एलोकेट कर सकते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो पेमेंट हमारा है वो किस नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, कैपिटल नेचर का है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो इस तरह से हम उसको आसानी से एलोकेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप 4 में देखिए, रिकॉर्डिंग इंप्लाइड एडजस्टमेंट। तो इंप्लाइड एडजस्टमेंट क्या है? वो एडजस्टमेंट जो बाद में आए हैं या उनको लिखा भी नहीं हुआ है, जैसे डिप्रिसिएशन हुआ, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट हुआ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, ये सब एडजस्टमेंट्स हैं। इसको हमको एडजस्ट करना पड़ता है, और ये एडजस्टमेंट जिससे रिलेटेड है, जिससे संबंधित है, उससे हमको शो करना पड़ता है। ऐसे डिप्रिसिएशन है, बिल्डिंग से घटा देंगे, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन है, तो मोटर कार का है तो मोटर कार से घटा देंगे। इस तरह से इसको एलोकेट हम लोग कर सकते हैं। पांचवें स्टेप में क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश और बैंक का, उसका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, और कैश और बैंक का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में हम लोग ट्रांसफर करके उसको शो करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 6 में देखिए क्या होता है। इनकम एक्सपेंडिचर का जो सरप्लस या डेफिसिट है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में। ये डेफिसिट है तो घटा देंगे, सरप्लस है तो ऐड कर देंगे। और लास्ट स्टेप में जो बैलेंस हमारे आइटम्स हैं, बैलेंस आइटम्स टू बी शोन इन रेस्पेक्टिव साइड। तो अंत में जो हमारे लास्ट में आइटम्स बच जाते हैं उसको रेस्पेक्टिवली हम लोग
जिस नेचर के हैं, लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटी साइड में, एसेट्स हैं तो एसेट साइड में उसको हम लोग एलोकेट या ट्रांसफर करके बुक्स को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से अकाउंटिंग फॉर फाइनल अकाउंट जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार किए जाते हैं, और इसी स्टेप्स को फॉलो करके बहुत हम लोग आसानी से अकाउंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव ए गुड डे।